Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue solving board question paper on the coordination compound, and I hope now you all are able to solve. Today I will see some questions more, and it will be the last day of solving question on the coordination compound. Next video we will start solving other chapters in the first term. Okay, now see, question is this question has been asked in 2017. Okay, in question is that for the complex FeN whole twice Cl2 and Cl. Identify the following. First, oxidation number of iron. Hybrid orbitals. Second, hybrid orbitals and shape of complex. Hybrid orbital and shape of complex. And third is magnetic behavior of complex. And name of the complex. Fourth is name of complex. All is 2017 दिल्ली में पूछा हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस कॉम्प्लेक्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैग्नेटिक बिहेवियर, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पता करना है। तो आइए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। पहले हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले FeN होल ट्वाइस Cl2 Cl यहाँ पे लिख लेंगे। किसका निकालना है? Fe का। X ले लेंगे। 2 into 0 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, प्लस 2 into -1 and plus -1 equal to 0. Here will be 2 and 1 3, -3 is equal to 0, x is equal to 3 plus 3. Oxidation number of iron will be 3 plus 3. ओके, तो एक सॉल्व हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। एकदम सिंपल वे यूज़ करिए, कोई शॉर्टकट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम पहले सॉल्व करते आए हैं वैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड शेप, इरेज कर दें इसको। ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगा कि यहाँ पे आयरन +3 स्टेट में है, तो आयरन Fe26 3d6 4s2 and Fe +3 3d +3 3d5 4s0, okay, 4s0. Now here you can see, no need to calculate this. Here is 6, coordination number is 6. So since coordination number of this complex is 6, therefore 4 hybrid orbital will be D2sp3, and you know that shape of D2sp3, what is shape of D2sp3? Octahedral. Shape will be octahedral, octahedral. Okay, now you have to see the magnetic behavior. This one was the second. Now you see the third, magnetic behavior. मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हमें देखना है तो देन वी हैव टू टेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3 प्लस is 3d5 4s0. Now it will be paramagnetic since it have 5 unpaired electron, 1 2 3 4 5. Then it will be paired. After pairing, then you will find the, then what will be here? Paramagnetic. If you paired of this 1 2, here will be 1 unpaired electron. Magnetic, paramagnetic. Okay, now name of the complex, name of the complex what will be name of complex? This is the complex Fe En whole times Cl2 and Cl. First of all, fluoro difluorido bis ethane 1 2 diamine bracket close chloride iron
थर्ड फ्लोराइड, ओके, थर्ड फ्लोराइड. डाइक्लोरिडो बेस, ethane 1,2-diamine iron third chloride. This is the name of complex. Okay, this is the name of complex. This way we will solve this question. Now we will come to next question. Okay, it may be asked, and I suppose this type of question, if you will solve more and more such questions, then you will successful in solving questions of this chapter. Okay, अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आप सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में. नाउ अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पलर के भी, जो कि आ सकते हैं. अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स. क्वेश्चन इज दैट अरेंज द following complex arrange the following complexes in increasing order of increasing order of the conductivity. Okay, increasing order of conductivity of their solution. ओके, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी. ठीक है. व्हाट आर दिस? CuNH3 whole thrice Cl3 thrice Cl3 and CuNH4 CuNH3 whole 4 Cl2 and CuNH3 whole 5 Cl और here is Cl also 5 and Cl2 and CuNH3 whole 6 Cl3. Okay, arrange these complexes in increasing order of their activity. Means conductivity means how they conduct electricity. हमें यहाँ पे क्या देखना है कि किस तरह से ये कंडक्ट कर पाएंगे. तो एक चीज़ तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स आयन हैं, कंडक्टर तभी होंगे जब वहाँ पे काउंटर आयन होंगे. क्या होंगे? काउंटर आयन. और जितने ज़्यादा काउंटर आयन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी. ध्यान से सुनने की बात है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं, अगर उनमें काउंटर आयन नहीं है तो कंडक्ट नहीं करेंगे. क्योंकि ऐसे साल्ट जिसमें काउंटर आयन नहीं होंगे एक्वस सोल्यूशन में जब डालेंगे तो फ्री आयन्स नहीं मिलेंगे और वो कंडक्टर का काम नहीं करेंगे. एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पे है, इसको देख लीजिए, इस वाले को, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है.
तो ये कंडक्टर अच्छा नहीं हो सकता है, ये कंडक्टर नहीं हो सकता। अब ग्रेटर द नंबर ऑफ काउंटर आयन ग्रेटर विल बी कंडक्टिविटी। एक लाइन हम यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ आयन्स greater will be conductivity। ग्रेटर विल बी कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे एक भी नहीं है और इसकी कंडक्टिविटी एकदम जीरो हो गई। यहाँ पे CuNH3, सॉरी थोड़ा इसको इधर से लिखते हैं, CuNH3 whole thrice Cl3 is less conductive, CuNH3 whole 4 Cl2 Cl CuNH3 whole 5 Cl Cl2, it will be less conductive than CuNH3 whole 6 Cl3। okay, greater the number of ions, greater will be conductivity, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। क्लियर है? अब इसमें देखिए, यहाँ पे एक भी आयन नहीं है, यहाँ पे अगर ये टूटेगा तो दो आयंस बनेंगे, 2 आयन, ये प्लस माइनस, यहाँ पे 2 आयंस आ गए अगर इक्वल सोल्यूशन में डालेंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस 3 आयंस, ठीक है, यहाँ 3 आयंस है। इस वाले केस में क्या है, प्लस माइनस, यहाँ पे 4 आयंस है। तो मोर कंडक्टिव कौन हुआ, लास्ट वाला क्या हो गया, मोर कंडक्टिव हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे अरेंज करने वाले, क्वेश्चन से एक और देख लेते हैं। जितने अगर हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाएंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं, तो वो थोड़ा हमें ज़्यादा फ़ायदे करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड, इन increasing order of crystal field, okay, splitting energy, ओके। हमें यहाँ पे अरेंज करना है गिवन कॉम्प्लेक्सेस को, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, यहाँ से CrCl 6 -3, then CrCl 6 -3, 6 -3, and here is
CrNH3O6+3। ओके, अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड में लगाना है। अब यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें देखा जाए तो क्लोरीन एक हैलोजन है। क्या है? हैलोजन। तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि हैलोजन्स की स्प्लिटिंग एनर्जी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा है कि हैलोजन की सबसे कम स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कम अगर किसी की होती है क्लोरीन से मगर ज़्यादा है ये NH3 की स्प्लिटिंग एनर्जी साइनाइड से कम होती है। ठीक है, तो अगर इसको हम ऑर्डर में लगाते हैं तो ये ऑर्डर लगाने का जो क्रम होता है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। कौन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आता है, कौन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बाद में आता है। तो अब अगर यहाँ पे हम ऑर्डर लगाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम आंसर पे आते हैं, सबसे कम Cl6 3-, उसके बाद CrNH3O6 3+, then CrCl6 3-। ओके, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड greater will be greater or more will be or more will be crystal field splitting enthalpy स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, तो जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उठाइए, उसमें देखिए कि किसकी कितनी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि एक्सप्लेन वाई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई, यहाँ पे FeS2O6 एक कॉम्प्लेक्स है +3 has magnetic moment this much, okay, whereas FeCl6 has value 1.74 pm। अब इस क्वेश्चन में सोचना में क्या करना है, सोचना है। क्या सोचना है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट किसी का ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अभी इसको हम समझा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। H2O इज वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, and this complex FeS2O6 3+
has unpaired electron, 5 unpaired electron, paired electron, okay, and 5 unpaired इलेक्ट्रॉन। इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम निकालें म्यू इक्वल टू √5 × 7, तो ये √ कितना हो जाएगा 35 मीन्स 5.92 बिलियन। तो यहाँ पे चूँकि अगर कहीं भी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और अगर हम इस केस में देखें Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके, therefore FeCN 6 3- has very less unpaired electron, okay, that is 1 unpaired electron. Hence क्या हो जाएगा μ इक्वल टू 1 × 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1.75, ओके, 1.3, ओके, therefore it will be 1.75। तो ये हो गया। अब इस तरह के हमने भी क्वेश्चन देख लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं एक बार और। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।